ہر وقت وہ بھی بڑی مزیدار گل تھی یار ہاتھ میں ٹھیک ہے شیشے کے کھل کے اپنی چمیاں لے جو اچھا عامر بھائی، یہ جو اتنا ہمارے سامنے یہ لوگ عقائد پیش کرتے ہیں اہل سنت کے، اہل تشیع کے، اور کہ ایک کا دوسرے سے نظریاتی اختلاف، عقائد میں اختلاف، لیکن مرزا قادیانی نے تو کچھ اور ہی بات کی ہوئی ہے کہ جتنے 73 فرقے بتائے جاتے ہیں مسلمانوں کے، یہ سب اختلاف جو ہے ان کا فروعی اختلاف ہے، عقائد میں سب ایک ہیں۔ یہاں مرزائی لگے پڑے ہیں ہمارے عقائد جو ہے ہم کو الگ الگ کر کے گنوانے میں۔ تو یہاں پر بھی وہ مرزا قادیانی کو ہی جھوٹا ثابت کر رہے ہیں نا، یا تو اس کی بات صحیح تھی یا ان کی بات صحیح ہے۔ ہماری کتابیں یہ کھول کھول کے جو دکھاتے ہیں ہم کو، علماء کرام نے جو ایک دوسرے پہ تکفیر کی ہے، کا پہلا جواب ہے ہی یہ جو آپ نے دیا ہے نا، نجف عباس ہو جائے یا کوئی بھی شیعہ ہو جائے یا کوئی بھی اہل سنت میں بھی اگر کوئی بندہ کہتا ہے جی بریلوی دیوبندی، تو اس کا پہلا جواب ہے ہی یہ کہ بھئی دیکھو یہ میرا اور اس کا مسئلہ ہے، آپ کا مسئلہ نہیں ہے، آپ نے بات کرنی ہے کرو، نہیں تو خدا حافظ، جاؤ اللہ کے والے ہو جاؤ، جان چھوڑو ہماری۔ ہم بھی بات کے حرص میں کہ نہیں بات ہونی چاہیے، گفتگو ہونی چاہیے، اس حرص میں لالچ میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کی بحث میں الجھ کے رہ جاتے ہیں، وہ پھر اسی ٹرک کی بتی کے پیچھے ہم دوڑتے رہتے ہیں۔ اچھا شیعہ کا کیا عقیدہ ہے، سنی کا کیا عقیدہ ہے، مرزائی چھپ ہی جاتا ہے پیچھے۔ تو پہلا جواب یہی ہے کہ آپ ان کو کہیں بھئی یہ میں جانوں میرے مسلمان پر آ جانے، وہ مجھے کافر سمجھے، میں ان کو کافر سمجھوں، تمہارا اس سے لینا کرنی ہے بات تو کرو، جو میں تمہارے سے بات کرنے آیا ہوں، نہیں کرنی تو جاؤ دوڑو۔ کہ نا جہاں جتنی صفائی دینے کی کوشش کرتے ہیں وہاں پر ظاہر سی بات ہے ان کا تو مقصد ہی یہی تھا۔ آپ صفائی دینا شروع کریں گے، وہ صفائی آپ کی صفائی پر مطمئن ہی نہیں ہوں گے نا، وہ چلتے ہی جائیں گے چلتے ہی جائیں گے، بات ختم ہی نہیں ہوگی۔ فائدہ کیا صفائی دینے کا، پہلے ہی اس کو شٹ اپ کال دو۔ جی ہاں، اور پھر وہ یہ جو کتابیں کھولتے ہیں کہ وہابیوں کے یہ عقائد ہیں، وہابیوں کے خدا کے متعلق بریلویوں نے یہ کہا، بریلویوں کے خدا کے متعلق وہابیوں نے یہ کہا، تو اس پہ بھی مرزا قادیانی کی تحریر ہے کہ ہم عقائد میں وہابیوں کے زیادہ نزدیک ہیں۔ اب تو یا تو اگر جو بات بریلوی کر رہے ہیں وہابیوں کے خدا کی، یہ لوگ خود بتائیں نا کہ یہ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں، ان کا اپنا کیا موقف ہے ان کی ان تحریرات کے اوپر، ان کو صحیح مانتے ہیں کہ غلط مانتے ہیں۔ اور فقہ کے اعتبار سے مرزا قادیانی کہتا ہے ہم بریلوی اور دیوبندی، مطلب لفظ تو وہاں پر حنفی استعمال کیا ہے لیکن ہم اس کو اس طرح الفاظ استعمال کریں گے، حنفیوں کے زیادہ قریب ہیں فقہ کے اعتبار سے۔ تو تکفیر اگر ایک دوسرے کی کر رہا ہے تو ڈائریکٹلی مرزا قادیانی بھی اس کے زد میں آ رہا ہے، اس کو فوراً بیچ میں لے کر آئیں۔ اور یہ اپنا موقف نہیں دیتے اس میں بیچ میں نا، ہم لوگ بھی لگے رہتے ہیں صفائی میں، ان سے اپنا ان کا موقف پوچھیں نا کہ فلاں اگر بندے کی آپ تحریر کتاب لے کر حوالہ دے رہے ہو تو اس کے اوپر آپ کا کیا موقف ہے، جماعت کا کیا موقف ہے، صحیح مانتے ہیں کہ وہ تحریر جو ہے وہ صحیح لکھی ہوئی ہے، وہ تکفیر صحیح ہوئی ہے؟ تو ان کو انگیج کرنے کے بجائے جو ہے وہ جہاں صفائی میں آتے ہیں ہم لوگ، وہاں پر وہ ظاہر سی بات ہے ان کی یہی چال ہے، یہی مقصد ہے ان کا۔ عامر بھائی موجود ہو؟ ایک چھوٹی جی عرض ہے کہ کیسر و کسرا دی جی پیشن دی نبی پاک کی، میں اگر یہ پچھلی انہوں بیان کر دوں، جدوں میرے آنا فتح مکہ دے موقع دے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط و کتابت دا سلسلہ شروع کیتا سی، تو کیسر و کسرا دی جی پہلی ریاست تھی میرے ذہن سے دا نام نہیں آ رہا، انہیں بغیر کسے بھی یعنی جنگ تو وہ مسلمانوں دی جگیر دا حصہ بنی سی وہ ریاست، میرے ذہن سے ایسی کوئی گل موجود ہے؟ واٹس ایپ پہ آڈیو کہہ دو تو جواب میں اتنے دے دیں گے، ٹک ٹاک میں فارغ نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے۔
لوگوں سے جمع کرنا، لواطت یعنی منڈے بازی جیسی خبیث بے حیائی کا مرتکب ہونا، توبہ توبہ، مخنث یا کفر کی طرف بیٹو سیگر صاحب، آپ سے بات ہو ہی مرزا صاحب کے اوپر سکتی ہے، کیونکہ ہمارا آپ کا اختلاف شروعات ہی اس کی مرزا صاحب کے الہامات سے ہوتی ہے۔ یہ جو مسلمانوں کے جو آپسی اختلافات ہیں نا، ان کی نوعیت ہے ہی الگ ہے بالکل۔ ہمارے جو اختلافات ہیں وہ کہیں پر قرآن کی آیت کے فہم کے اوپر ہوگا، یا حدیث کے فہم کے اوپر ہوگا، یا حدیث کے تخریج کے اوپر ہوگا، یا لغت کے اعتبار سے ہوگا۔ ایک چھوٹا سا سوال چلو میں آپ سے کر لیتا ہوں، عامر میں مصروف ہیں، اگر مطلب یہ لگائیں کہ اگر یہ ہوتا ہے کہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ یا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اگر ان کا یعنی کہ میں یہ ایک نا بڑے تھوڑے سے ہلکے لفظ ہوں گے لیکن اس کو برا نہ بنائیے گا برائے مہربانی، کوئی بھی، میرا مقصد وہ نہیں ہے، صرف سمجھنے کی حد تک ہے، اگر وہ جھوٹے ثابت ہوتے ہیں تو مرزا صاحب کی سچائی کیسے ثابت ہوگی اس سے؟ جی سوال تو یہ اہم سوال ہے نا، یہ کہ ان کے آپس میں ہمارے آپسی اختلافات کے اندر، اب مثال کے طور پہ یہ تو آپ نے پھر بھی قریب کی مثال لے لی نا، صحابہ کرام کے اندر آپس میں ہو گئے تھے اختلافات، جنگ تک بات آ گئی تھی، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ مسلمہ کذاب جو وہ سچا ہو گیا؟ یہ باہر والوں کا کیا لینا دینا ہمارے آپسی اختلافات سے؟ اچھا، ایک مزے کرنا سوری ایک ویڈیو آپ سے شیئر کرنی ہے حضرات سے، اس پہ آپ کی رائے بھی لینی ہے۔ آپ میں سے کس کس بندے نے اس کا اویس کا اور یہ کیا نام ہے اس کا خرم کا وہ ڈیبیٹ سنی ہوئی ہے مکمل؟ نہیں سنی؟ چلو میں سناتا ہوں۔ یہ ایک سوال ہے۔ جو جماعت احمدیہ کے بانی ہے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام، ان کے والد 70 گاؤں کے مالک تھے، ایک رئیس تھے قادیان کے۔ آپ بھی اگر آپ ان کی کتابیں پڑھیں تو آخر میں لکھا ہوتا ہے رئیس قادیان۔ تو سر ایک رئیس کا بیٹا کلیریکل جاب کیوں کرتا تھا؟ وہ ایک الگ کوشچن ہے، میں وہ بعد میں بتا دوں گا۔ تو وہ رئیس قادیان تھے اور بہت بڑے جاگیردار تھے، اور جب پاکستان بنا وہ خاندان پاکستان سے ہندوستان سے پاکستان منتقل ہوا، تو وہ جائیدادوں کی منتقلی جو کہ قانون کے حساب سے ملی، تو ان کی اپنی جائیدادیں ہیں جو کہ خاندانی جائیدادیں ہیں، نہ کہ چندے سے وصول بنائی گئی، بلکہ ان کی جو نسل در نسل آگے منتقل ہوتی گئی ہے وہاں سے ان کی آمدنی ہے، ان کے اپنے ذرائع ہیں آمدنی کے۔ کوئی چندے کے پیسے سے، یہ جھوٹ بات ہے کہ چندے کے پیسے سے ان کے اخراجات پورے ہوتے ہیں، یہ سراسر جھوٹ کے سوا کچھ نہیں۔ یہ جو جائیدادیں ہیں یہ ان کے گاؤں تھے ان کے، اس لیے یہاں سے ہوتی ہیں یہ پوری، یہ عجیب بات ہے۔ بانڈا مرزا صاحب نے خود پھوڑا ہوا ہے نا۔ ہاں وہی تو میں کہہ رہا ہوں، وہ تو کہتے جگہ ہی نہیں ملی واپس، گاؤں ملے ہی نہیں واپس۔ وہ ہوتا یہی ہے نا کہ زمیندار جو ہوتے ہیں اپنے دکھاتے ہیں کہ یہ فلاں گاؤں بھی اپنا ہی ہے، یہ بھی زمین اپنی ہے، تو یہ گھر بھی جو ہے اس کی یہ لاگت ہے، یہی دکھا کے مرزا قادیانی نے بزنس شروع کیا تھا۔ اس طرح بینک کو کاغذات دکھاتے ہیں نا، اسی طرح پبلک کو کاغذات دکھا کے، کاغذات بھی نہیں صرف شکل دکھا کے، شکل بھی کسی نے آ کر نہیں دیکھی ہوگی قادیان میں، صرف اشتہار ہی تھا نا کہ جس نے آ کر دیکھنا ہو دیکھ لے، تو پیسے جو ہے نا یہاں پر انویسٹ کرے کتاب میں، تو وہاں سے پیسہ اصل میں بنانا شروع کیا، ورنہ پینشن ہو گئی۔ ایک چھوٹی سی نا میں بات یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں، ہمارے گاؤں کا نا ایک بندہ تھا، ٹھیک ہے، تو پپوس کا نام تھا، ایک کاسٹ سے بلونگ کرتا تھا، میں چلو کاسٹ نہیں لیتا، لیکن اس میں وہ دبئی میں رہتا تھا، شارجہ میں، لیکن یہاں پہ اس نے بتایا ہوا تھا کہ میں بہت بڑا جگیردار ہوں، میری فلاں برادری سے چل رہا تھا، چودھری برادری تھی، ان میں سے کوئی بھی آپ لے لیں، وڑائچ برادری تھی، ٹھیک ہے۔ وہاں سے پاکستان میں ایک بندہ آ گیا اس کو ملنے کے لیے، وہ پاکستان میں موجود تھا، میری گلی کے بالکل سامنے اس کا گھر ہے، تو وہ پاکستان جب آیا وہ بندہ، تو اس نے کہا یار وہ فلاں جو
बंदा है वो किधर रहता है, वड़ाइच साहब जो है उसका नाम लेके आगे वड़ाइच लगाया। मैं कहा, है ऐसा कोई बंदा यार यहाँ पे तो नहीं रहता। तो पिंड में है ना, पिंड में सारे बंदे एक दूसरे को जानते होते हैं जी, फलां ऐसे ऐसे वो शारजा होता है, फलां उसकी दुकान है वहाँ पे वो ये काम करता है। तो वो कहाँ रहता है? हाँ यार वो वहाँ रहता है, वो उधर रहता है, किसी और से पूछ लो, मेरे से नहीं बल्कि किसी और से पूछ लो। उसने जब उसने बताया ना वो सामने गली में उसकी ये बरादरी है तो वो उधर रहता है। तो मिर्जा साहब का ये कोई ऐसा सीन तो नहीं था, तो मतलब बताया कुछ और था, थे कुछ और। जो इनकी जागीर के मामलात थे ना वो तो थे ही पेचीदा। बाप इनका जो है वो लड़ के मर गया अदालतों में केसेस। तो जो छोटी थोड़ी बहुत जो जमीन बची थी उसी के बलबूते पे, वो भी बटी नहीं थी जमीनें। तो आपको मालूम है मोहम्मदी बेगम का जो बाप आया था और अहमद बेग जो आया था, वो भी जमीन का ही मामला था ना। वो ये सारी मिक्स्ड जमीनें थी जो चचाजाद भाइयों की भी थी और इनकी भी थी, मिल मिला के वो सारी जमीन। तो उसी को मिर्जा कब्जा नहीं कहता, तो ये अपनी जमीन है। आप उधर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ओमान में ना मेरा लॉजिस्टिक्स से ताल्लुक है, तो हम लोग करते हैं यहाँ पर ट्रक्स की जो है ना रिक्वायरमेंट होती है हमारी। तो लोग आते हैं, ड्राइवर्स आते हैं कि भाई हमारा जो है ना ये काम है, हम डिलीवरीज करते हैं यहाँ से सऊदीया वगैरह। तो उनसे पूछो कि अच्छा कितनी गाड़ियां कंपनी में शिरके में आपके पास, तो वो बताते हैं 10-12 गाड़ियां इधर हैं, दूसरे शिरके में 10-15 गाड़ियां वो हैं, कुल मिला के हमारी जो है ना 20-25 गाड़ियां हैं। तो अब जब शुरू में ये काम शुरू किया था तो मुझे नहीं इतना आइडिया था कि अंदर की कहानी क्या होती है। वो पता ये चला कि वो एक गांव का बंदा है, उसके पास एक गाड़ी अपनी, वो खुद भी ड्राइवर है, वो 3-4 भाई हैं, सबके सब वो भी ड्राइवर हैं। तो वो मिल मिला के जो है ना 5 गाड़ियां हो गई। फिर वो बराबर वाले गाँव से उसकी भी जो है ना, वो भी चूंकि सेम ही खानदान के हैं लेकिन आपस में झगड़े हैं इनके अलग, फिर भी उसको जो है ना अपने उसमें काउंट करके जो है ना, जब वो हम लीगली उसको रजिस्टर करने जाते हैं तो प्रॉब्लम आती है। तो मतलब उन्होंने पूरे गांव की गाड़ियां मिला के, हाँ पूरे गांव के अगर 50 आदमी है तो 50 गाड़ियां अपनी। साडा भाई है, वो भी साडा भाई है, सगा भाई है, वो सगा भाई है वो। हाँ ये बात है। साई साहब कुछ बात करना चाहते थे ना जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी जनाब, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं सुन रहा था कि मिर्जा साहब के जमीनों पे बात हो रही थी, उनके माली मामला डिस्कस हो रहे हैं। नहीं, ये बात नहीं थी। सिर्फ सवाल इतना सा है कि अगर मिर्जा साहब की जमीनें इतनी ज्यादा थी, उनके 70 गांव थे, तो मिर्जा साहब बकल खुद जो थे वो क्यों क्लरिकल जो स्टाफ में थे वहां पे सालकोट कचहरी में? ये है वो सारी। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि वो जमीनें जो थी ना, वो जो सिखों का राज है ना, उस वक्त उनसे छीन ली गई थी। बहुत सारी जमीनें और बहुत सारे इलाके उनसे ना छीन गए थे। और ये माजी करीब में भी और अभी भी हम जो देखते हैं, इवन के पंजाब में भी है ये, और सिंध में तो बहुत ज्यादा है कि उस वक्त लोगों के पास बहुत जमीनें होती थी और गाँव के गाँव होते थे। ये सिर्फ मिर्जा साहब की खासियत ही नहीं है, जो शाह फैमिलियां हैं इनको तो अंग्रेजों ने दी थी जमीनें, ये अंग्रेजों के पिट्ठू थे। और हमारे जो जिला जंग है रवाज, पहले जिला जंग में था, अब तो चिनौट बन गए, वहाँ के जो शाह हैं जिसमें मखदूम शाह वगैरह, इधर वो जो एक दफा वजीर आजम भी बना था, तो इन लोगों को जो जमीनें दी गई थी वो दी थी अंग्रेजों ने। और अभी भी इनकी बाकियात रवा के इर्द गिर्द हैं, अभी भी वो कई मुरब्बे जमीनें हैं इनकी। और वो बहरहाल अब नस्ल दर नस्ल कुछ कम हो गई हैं, कुछ इन्होंने बेची भी हैं। तो उस वक्त ये मामूली सी बात थी, उस वक्त ये जमीनें लोगों के पास होती थी इस तरह। ये कोई ऐसी नहीं है। ये तो सनती तरक्की बाद में आई है यूरोप के रास्ते, और लोगों ने फिर सनती तरक्की की है।
अपने हिंदुस्तान पाकिस्तान में उस वक्त कहाँ थी सन्नत? यही थी, जमीन ही होती थी लोगों के पास, और क्या था वहां पे? कुछ भी नहीं। ये तो अंग्रेज आया, ट्रेन की पटरी बिछी और फिर वो सन्नत लेके आया, साइकिल लेके आया, गाड़ियां लेके आया। वहाँ पे लंबी हो जाएगी इकबाल भाई। मैं ठीक है, आपने बता दिया कि वो अंग्रेजों के सिखों के दौर में सिख राज में वो जमीनें उनसे छीन ली गई, कब्जा कर लिया गया, उन पे ऐसे कर ले। अब ये सुने जी जी। जो जमात अहमदिया के बानी है हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम, उनके वालिद 70 गांवों के मालिक थे, एक रईस थे कादियान के। आप भी अगर आप उनकी किताबें पढ़े तो आखिर में लिखा होता है रईस कादियान। सर एक रईस का बेटा क्लरिकल जॉब क्यों करता था? वो एक अलग क्वेश्चन है, मैं वो बाद में बता दूंगा आपको। तो वो रईस कादियान थे और बहुत बड़े जागीरदार थे। और जब पाकिस्तान बना वो खानदान पाकिस्तान से हिंदुस्तान से पाकिस्तान मुंतकिल हुआ, तो वो जायदादों की मुंतकिली जो कि कानून के हिसाब से मिली, तो उनकी अपनी जायदादें हैं जो कि खानदानी जायदादें हैं, ना कि चंदे से वसूल बनाई गई, बल्कि उनकी जो नस्ल दर नस्ल आगे मुंतकिल होती गई है वहां से उनकी आमदनी है, उनके अपने जराए हैं आमदनी के। कोई चंदे के पैसे से, ये झूठ बात है कि चंदे के पैसे से इनके अखराजात पूरे होते हैं, ये सरासर झूठ के सिवा कुछ नहीं। जी, वो कह रही है कि आपने कहा कि वो तो सिखों के दौर में छीन ली गई। ये कह रहे हैं कि जब वो जायदादें वो पाकिस्तान में हैं तो वो मुंतकिली यहाँ पे हुई, लिहाजा इसलिए वो किसी से चंदा संदा नहीं लेते, वो चंदे से उनका कारोबार नहीं, मतलब उनका हाजरिया मुआश नहीं चलता, उस जायदाद से चलता है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई लुकमान भाई आपकी बात में और इनकी बात में। देखिए वो जमीन जो थी वो सिखों ने, उनकी किताबों में भी है दर्ज के सिखों ने वो जमीन उनसे वो हथियाली थी, सिखों ने कब्जे किए थे। पंजाब में सिखों की हुकूमत थी और इस शिद्दत से थी कि मुसलमानों की मस्जिदों में उन्होंने घोड़े बांधे थे और मुसलमानों को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। उसी में भी मिर्जा साहब के जो गाँव और देहात थे उन पर भी कब्जे हो चुके हुए थे। इवन के जब मैं 2009 में कादियान गया था तो वहाँ के पुराने लोगों ने बताया था कि यहाँ कादियान के जो मोहल्लों के नाम हैं वो भी इस्लामी नाम रखे गए थे उस वक्त, और बाद में फिर जब वो हथियार लिए गए तो वो फिर नाम मादूम हो गए। इनके जो वालिद साहब में भी डिस्टेंस होता है। देखें वालिद साहब थे, इनके मिर्जा साहब के जो वालिद साहब थे वो कादियान में तो नहीं ना रहते थे पहले, ये हिजरत करके आए थे। ये तो अब देखना पड़ेगा। नहीं ये हिजरत की थी, ये बात ठीक है। रईस कादियान वो नहीं थे, क्योंकि जब वो कादियान देहात आबाद इन्होंने किए थे ना, ये देहात जो थे इनके आबाओ अजदाद ने आबाद किए थे। नहीं, जब ये कादियान में आए थे हिजरत करके तब तो इनकी जमीनें छीन ली गई थी, तभी तो हिजरत की ना इस साइड पे। नहीं, यहाँ ही इनकी जमीनें थी और यहीं से ये देहात कादियान और साई साहब ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਾਰੀ ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਬਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੁਮੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਜੁਮਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਰੀਦ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲਈਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ। ਸਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਉਂ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਬਿਲਾਲ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਬਿਲਾਲ ਭਾਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਲ ਇਮਾਮ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲੋ, ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ 18ਵੀਂ ਜਿਲਦ ਵਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਲ ਇਮਾਮ ਕਿਹੜੀ ਜਿਲਦ ਚ ਜਿਹਦੇ ਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਅਫੀਸਰ। ਜੀ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਖੋਲੋ ਕਿਤਾਬ। 1898 की तसनीफ है मेरा हाल ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਮ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖਿਆ ਆਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਕਦਾ ਹੈ ਰਸਾਲਾ। ਐਡਾ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, 630 ਸਫਿਆਂ ਦਾ ਵਾ, ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ? 630 ਸਫਿਆਂ ਦਾ। 630 ਸਫਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਐਂਡ ਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਆਖਰ ਤੇ ਚੰਦ ਸਫਿਆਂ ਦਾ।
जी जी ਬਾਕੀ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਲਾਈ ਬਖਸ਼ ਕਾਉਂਟੈਂਟ ਨੂੰ। जी हाँ जी 514 जी जी ਜਿੱਥੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਆਇਆ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ 700 ਰੁਪਇਆ ਸਾਲਾਨਾ ਟੈਕਸ। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਕਿਹਦੀ ਮਿਊਟ ਚ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬਈ 700 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਮਦਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਗੋਸ਼ਵਾਰੇ ਦੱਸ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸਾਸੇ ਕੀ ਨੇ। ਉਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛਾਪੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 700 ਰੁਪਇਆ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਸੀਰਤੁਲ ਮਾਦੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 5 ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ 6 ਮੁਕੱਦਮੇ ਭੁਗਤੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਨ ਤੇ 4 ਫੌਜਦਾਰੀ। ਚੁੱਕੋ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਚੁੱਕੋ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਵੇ। 4 ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਨ ਤੇ 2 ਦੀਵਾਨੀ। ਜਿਹੜੇ 2 ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਨ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਵਾਲਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਇਆ ਸੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜੇ 4 ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਨ ਉਹ ਮਾਰਟਨ ਸ਼ੇਖ ਬਟਾਲਵੀ ਦਾ, ਨਕਸ਼ੇ ਅਮਨ ਵਾਲਾ ਲੇਖਰਾਮ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ? ਅਮਰ ਭਾਈ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਦੇ 3 ਹਵਾਲੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਮਾਮ ਦੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ? ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਵਰਡ ਤੇ ਦੱਸੋ। 516 ਸਫਾ ਖੋਲੋ ਨਾ, 516 ਸਫਾ ਖੋਲੋ, ਉੱਥੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਣਾ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਬਣਾਈ? इल्म वाले आलम दीन ने कराया सी। नहीं, मौलाना करमदीन जेलमी ने। अब वो मुकदमा यानी तहसीलदार साहब लगाए, फौजदारी मुकदमा चौथा। हाँ बिल्कुल, वो गाला वाला। साहिब डिप्टी कमिश्नर बहादुर का अखीर हुक्म झैल में लिखा जाता है। पढ़ना जी बिल्कुल ठीक है। चौथा मुकदमा ਜਿਹੜਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਜੇਲਮ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਾਨਾ ਕਰਮਦੀਨ ਜੇਲਮੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮਵਾਹਿਬ ਰਹਿਮਾਨ ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰ 4 ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸੀ ਤੇ 2 ਦੀਵਾਨੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 2 ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ ਵੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੀ ਲਿਖਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰੀਦ ਕਿੰਨੇ। अच्छा है, 2 चीज़ा ने, एक तो 514 तो चौहान साहब शुरू होता है कि मिर्जा गुलाम अहमद एक पुराने मुअज़्ज़ज़ खानदान में से है। इथों शुरू करा या 16 तो शुरू करा? चलो मैं 14 से शुरू कर दूं। ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾਓ, ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾਓ। 13 तो शुरू होता है, 513 तो शुरू कर लेने को बस। कल रिपोर्ट ताजदीन। हाँ बिल्कुल। लो जी, ये है नकल रिपोर्ट मुंशी ताजदीन साहब तहसीलदार परगना बटाला गुरदासपुर बमुकदमा उजरदारी टैक्स मशमूला मिसर इजलासी मिस्टर टी डैक्सन साहब डिप्टी कमिश्नर बहादुर। मरजुआ 20 जून 1898 फैसला आगे मिसल आज़ादारी इनकम टैक्स मजम्मी मिर्जा गुलाम अहमद वल्द गुलाम मुर्तजा ज़ात मुगल सकना कादियान तहसील बटाला जिला गुरदासपुर। बाजूर जनाबे वाला शान जनाब साहब डिप्टी कमिश्नर बहादुर जिला गुरदासपुर। जनाबे वाली मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पर इस साल इनकम टैक्स तशखीस हुआ था। इससे पेशतर मिर्जा गुलाम अहमद पर कभी टैक्स तशखीस नहीं हुआ, चूंकि ये टैक्स नया लगाया गया था। जी जी, ये 1878 वाला साल है ना? नहीं, ये गलत लिखा 1898 ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 1898 या फैसला 17 सितंबर 1898। 78 नहीं हो सकता, गलत लिखा। मिर्जा गुलाम बच्चों ने गलत लिखे, हाँ गलत लिखे है। 98 जून 98 च। जी जी हाँ जी, 20 जून 1898। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पर इस साल
187/18 इनकम टैक्स तशखीस हुआ था। इससे पेशतर मिर्ज़ा गुलाम अहमद पर कभी टैक्स तशखीस नहीं हुआ। चूंकि यह टैक्स नया लगाया गया था, मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने इस पर अदालत हजूर में उज़रदारी दायर की, जो बनाबर दरियाफ्त सुपुर्द महकमा हाजा हुई। पेशतर इसके कि इनकम टैक्स के मुतालिक जिस कदर तहकीकात की गई हैं, इसका जिक्र किया जाए। बेहतर मालूम होता है कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी का कुछ जिक्र गोश गुजार हो जाए, कुछ जिक्र गोशे गुजार हजूर किया जावे, ताकि मालूम हो कि उज़रदार कौन है और किस हैसियत का आदमी है। मिर्ज़ा गुलाम अहमद एक पुराने मोअज़्ज़ज़ ख़ानदान मुग़ल में से है, जो मौज़ा कादियान में अरसा से सुकूनत पजीर है। इसका वालिद मिर्ज़ा गुलाम मुर्तज़ा एक मोअज़्ज़ज़ ज़मींदार था और मौज़ा कादियान का रईस था। इसने अपनी वफ़ात पर एक माकूल जायदाद छोड़ी। इसमें से कुछ जायदाद तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद के पास अब भी है और कुछ मिर्ज़ा सुल्तान अहमद पिसर मिर्ज़ा गुलाम अहमद के पास है, जो इसको मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादर मिर्ज़ा गुलाम कादर मरहूम की बीवी के तवस्सुल से मिली है। यह जायदाद अक्सर ज़रई मसलन बाग, ज़मीन और ताल्लुकादारी चंद देहात हैं, और चूँकि मिर्ज़ा गुलाम मुर्तज़ा एक मोअज़्ज़ज़ रईस आदमी था, मुमकिन है और मेरी राय में अगलब है कि इसने बहुत सी नकदी और जेवरात भी छोड़े हों। लेकिन ऐसी जायदाद गैर मनकूला की निस्बत काबिल इत्मीनान शहादत नहीं गुजरी। मिर्ज़ा गुलाम अहमद इब्तदाई अयाम में खुद मुलाजमत करता रहा है और इसका तरीक अमल हमेशा से ऐसा रहा है कि इससे उम्मीद नहीं हो सकती कि इसने अपनी आमदनी या अपने वालिद की जायदाद, नकदी और जेवरात को तबाह किया हो। जो जायदाद गैर मनकूला इसको बाप से वरासतन पहुंची है, वो तो अब भी मौजूद है, लेकिन जायदाद गैर मनकूला की निस्बत शहादत काफ़ी नहीं मिल सकी। लेकिन बहरहाल मिर्ज़ा गुलाम अहमद के हालात के लिहाज से ये तमानियत के साथ कहा जा सकता है कि वो भी इसने तलफ नहीं की। कुछ मुद्दत से मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने मुलाजमत वगैरह छोड़कर अपने मजहब की तरफ रुजू किया और इस अमर की हमेशा से कोशिश करता रहा कि वो एक मजहबी सरगर्म माना जावे। इसने चंद मजहबी किताबें शाया की, रसाला जात लिखे और अपने ख्यालात का इजहार बजरिया इख्तियारात किया। चनाचे इस कुल कार्रवाई का ये नतीजा हुआ कि कुछ अरसा से एक मुतअद्दिद अशखास का गिरोह, जिनकी फहरिस्त बहरूफ अंग्रेजी मुंसलिक हाजा है, इसको अपना सरगर्म मानने लग गया और बतौर एक अलहदा फ़िरका के कायम हो गया। इस फ़िरका में हस्बे फहरिस्त मुंसलिका हाजा 318 आदमी हैं, जिनमें बिलाशुबा बाज़ अशखास जिनकी तादाद ज़्यादा नहीं मुअज़्ज़ज़ और साहिब इल्म हैं। मिर्ज़ा गुलाम अहमद का गिरोह जब कुछ बड़ा निकला तो उसने अपनी कुतब फ़तह इस्लाम और तज़हीह मराम में अपने अगराज के पूरा करने के लिए अपने पैरों से चंदा की दरख्वास्त की और इनमें 5 मुद्दात का जिक्र किया जिनके लिए चंदा की ज़रूरत है। चूँकि मिर्ज़ा गुलाम अहमद पर इसके मुरीदान का एतकाद हो गया, रफ्ता रफ्ता उन्होंने चंदा भेजना शुरू किया और अपने खतूत में बाज़ दफ़ा तखसीस कर दी कि इनका चंदा इन 5 मुद्दों में से फ़लाँ मद पर लगाया जावे, और बाज़ दफ़ा मिर्ज़ा गुलाम अहमद की राय पर छोड़ दिया कि जिस मद में वो ज़रूरी ख्याल करें सरफ करें। चनाचा हसब बयान मिर्ज़ा गुलाम अहमद अज़रदार और बरोए शहादत गवाहान चंदा के रुपया का हाल इसी तरह होता है। अलगर्ज़ ये गिरोह इस वक्त बतौर एक मजहबी सोसाइटी के है, जिसका सरगर्म मिर्ज़ा गुलाम अहमद है, और बाकी सब पैरवान और चंदा बाहमी से अपनी सोसाइटी के अगराज को बसलूक पूरा करते हैं। जिन 5 मद्दात का ऊपर जिक्र हुआ है वो हस्बे ज़ैल हैं। नंबर 1, अव्वल मेहमान खाना। जिस कदर लोग मिर्ज़ा गुलाम अहमद के पास कादियान में आते हैं, ख्वाह वो मरीद हों या ना हों, लेकिन वो मजहबी तहकीकात के लिए आए हों, उनको वहाँ से खाना मिलता है और हस्बे बयान तहरीरी मुख्तार मिर्ज़ा गुलाम अहमद इस मद के चंदा में से मुसाफिरों, यतीमों और बेवाओं की भी अमदाद की जाती है। दोवम मुतबा, इसमें मजहबी किताबें और इश्तिहारात छापे जाते हैं और बाज़ दफ़ा लोगों में मुफ्त तकसीम होते हैं।
सोवम मदरसा। मिर्ज़ा गुलाम अहमद के मुरीदों की तरफ से एक मदरसा कायम किया गया है, लेकिन इसकी भी इब्तदाई हालत है और इसका अहतमाम मौलवी नूरुद्दीन के सुपुर्द है, जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद का एक मुरीद ख़ास है। चहारम, सालाना और दीगर जलसा जात। इस ग्रोह के सालाना जलसे भी होते हैं और इन जलसों के सर अंजाम देने के लिए चंदा फराहम किया जाता है। पंजम, खतो किताबत। हस्बे बयान तहरीरी मुख्तार मिर्ज़ा गुलाम अहमद और शहादत गवाहान, इसमें बहुत सा रुपया खर्च होता है। मजहबी तहकीकात के मुतालिक जिस कदर खतो किताबत होती है, इसके लिए मुरीदों से चंदा लिया जाता है। अलगरज हस्बे बयान गवाहान, इन 5 मदों में चंदा का रुपया खर्च होता है और इन जराया से मिर्ज़ा गुलाम अहमद माँ अपने मुरीदों के अपने ख्यालात मजहबी की इशाअत करता है। ये सोसाइटी एक मजहबी ग्रोह है और चंदा हुजूर को इस ग्रोह की निस्बत पेशतर से इल्म है, इसलिए इसी मुख्तसर खाका पर इक्तफा की जाती है और अब असल दरख्वास्त अज़ादारी के मुतालिक गुजारिश की जाती है। मिर्ज़ा गुलाम अहमद पर अमसाल 7200 रुपया इसकी सालाना आमदनी करार देकर 178/18 इनकम टैक्स करार दिया गया है। इसकी उज़रदारी पर इसका अपना बयान खास मौजा कादियान में, जबकि कम तरीन बतकरीब दौरा इस तरफ लिया गया और 13 कस गवाहान की शहादत कलम बंद की गई। मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने अपने बयान हल्फी में लिखवाया कि इसकी ताल्लुकादारी ज़मीन और बाग की आमदनी है। ताल्लुकादारी की सालाना तखमीनन 82/10 की ज़मीन की तखमीनन 300 रुपया सालाना की और बाग की सालाना तखमीनन 200-300 रुपया, 400 और हद दर्जा 500 रुपया की आमदनी होती है। इसके अलावा इसको किसी किस्म की और आमदनी नहीं है। मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने यह भी बयान किया कि इसको तखमीनन 5200 रुपया सालाना मुरीदों से इस साल पहुंचा है, वरना औसत सालाना आमदनी करीबन 4000 रुपया की होती है। वो 5 मदों में जिनका जिक्र ऊपर किया गया खर्च होती है और इसकी जाती खर्च में नहीं आती। खर्च और आमदनी का हिसाब बाज़ाब्ता कोई नहीं है, सिर्फ यादाश्त से तखमीनन लिखवाया गया है। मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने यह भी बयान किया कि इसकी जाती आमदनी बाग, ज़मीन और ताल्लुकादारी की इसके खर्च के लिए काफ़ी है और इसको कुछ ज़रूरत नहीं कि वो मरीदों का रुपया जाती खर्च में लावे। शहादत गवाहान भी मिर्ज़ा गुलाम अहमद के बयान की तायद करती है और बयान किया जाता है कि मरीदान बतौर खैरात 5 मदाद बज़कूरा बाला के लिए रुपया मिर्ज़ा गुलाम अहमद को भेजते हैं और इन्हीं मदाद में खर्च होता है। मिर्ज़ा गुलाम अहमद की अपनी ज़ाती आमदनी सवाए आमदनी ताल्लुकादारी, ज़मीन और बाग के और नहीं है जो काबिल टैक्स हो। गवाहान में से 6 गवाह वो मोतबर इश्खास हैं, लेकिन मिर्ज़ा साहब के मुरीद हैं और अक्सर मिर्ज़ा गुलाम अहमद के पास रहते हैं। दीगर 7 गवाह मुख्तलिफ किस्म के दुकानदार हैं जिनको मिर्ज़ा साहब से कुछ ताल्लुक नहीं है। बिलअमूम ये सब गवाहान मिर्ज़ा गुलाम अहमद के बयान की तायद करते हैं और इसकी ज़ाती आमदनी सवाए आमदनी ताल्लुकादारी, ज़मीन और बाग की और किसी किस्म की नहीं बतलाते। मैंने मौका पर भी खुफिया तौर से मिर्ज़ा गुलाम अहमद की ज़ाती आमदनी की निस्बत बाज़ अशख़ास से दरियाफ्त किया, लेकिन अगरचे बाज़ अशख़ास से मालूम हुआ कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद की ज़ाती आमदनी बहुत है और यह काबिल टैक्स है, लेकिन कहीं से कोई बैन सबूत मिर्ज़ा साहब की आमदनी का ना मिल सके। ज़बानी तज़किरात पाए गए, कोई शख्स पूरा सबूत न दे सका। मैंने मौज़ा कादियान में मदरसा और मेहमान खाना का भी मुलाहजा किया। मदरसा अभी इब्तदाई हालत में है और अक्सर बाइमारत खाम बना हुआ है और कुछ मरीदों के लिए भी घर बने हुए हैं, लेकिन मेहमान खाना में वाकई मेहमान पाए गए और ये भी देखा गया कि जिस कदर मुरीद इस रोज़ कादिया में मौजूद थे, उन्होंने मेहमान खाना से खाना खाया। कम तरीन की राय नाकस में अगर मिर्ज़ा गुलाम अहमद की ज़ाती आमदनी सिर्फ ताल्लुकादारी और बाग की करार दी जाए, जैसा कि शहादत से या हुआ, और जिस कदर आमदनी मिर्ज़ा साहब को मुरीदों से होती है उसको खैरात का रुपया करार दिया जाए, जैसा कि गवाहान ने बिलअमूम बयान किया,
تو مرزا غلام احمد پر موجودہ انکم ٹیکس بحال نہیں رہ سکتا، لیکن جبکہ دوسری طرف یہ خیال کیا جاتا ہے کہ مرزا غلام احمد ایک معزز اور بھاری خاندان سے ہے اور اس کے آباء و اجداد رئیس ہیں اور ان کی آمدنی معقول رہی ہے اور مرزا غلام احمد خود ملازم رہا ہے اور آسودہ حال رہا ہے، تو ضروری گمان گزرتا ہے کہ مرزا غلام احمد ایک مالدار شخص ہے اور قابل ٹیکس ہے۔ مرزا صاحب کے اپنے بیان کے مطابق حال ہی میں اس نے اپنے باغ اپنی زوجہ کے پاس گروی رکھ کر اس سے 4000 روپیہ کا زیور اور 1000 روپیہ نقد وصول پایا ہے۔ تو جس شخص کو عورت اس قدر روپیہ دے سکتی ہو اس کی نسبت ضرور گمان گزرتا ہے کہ وہ مالدار ہوگا۔ کم ترین نے جس قدر تحقیقات کی ہیں وہ شامل مثل حاضہ ہے اور باتعمیل حکم حضور کوٹ حاضہ ارسال خدمت حضور ہے المرقوم 31 اگست 1898۔ کم ترین تاج دن تحصیلدار بٹالہ مقرر آن کے مختار وکیل مرزا غلام احمد کو حضور کی عدالت میں حاضر ہونے کے لیے 3 ستمبر 1898 کی تاریخ دی گئی ہے۔ تحریر بتاریخ دستخط حاکم نقل حکم درمیانی وسیقہ عزتداری ٹیکس اجلاسی ٹی ڈیکسن صاحب ڈپٹی کمشنر بہادر گرداسپور مثل آگے یہ ہے۔ آج یہ کاغذات پیش ہو کر رپورٹ تحصیلدار صاحب سماعت ہوئی۔ فی الحال یہ مثل زیر تجویز ہے رہے۔ شیخ علی احمد وکیل اور مختار عزتدار حاضر ہیں، ان کو اطلاع دیا گیا ہے۔ تحریر 3/9/1898 دستخط حاکم نقل ترجمہ حکم اخیر وسیقہ عزتداری ٹیکس اجلاسی مسٹر ٹی ڈیکسن صاحب بہادر ڈپٹی کمشنر ضلع گرداسپور ترجمہ حکم۔ یہ ٹیکس جدید تشخیص کی گئی ہے اور مرزا غلام احمد کا دعویٰ ہے کہ تمام اس کی آمدنی اس کے ذاتی کاروبار پر خرچ نہیں ہوتی بلکہ اس فرقہ کے اخراجات پر صرف ہوتی ہے کہ جو اس نے قائم کیا ہے۔ وہ تسلیم کرتا ہے کہ اس کے پاس اور جائیداد بھی ہے، لیکن اس نے تحصیلدار کے سامنے بیان کیا کہ وہ آمدنی بھی کے جو از قسم آمدنی اراضی وزارات کی ہے اور زیر دفعہ 5 بے مستثنیٰ ہے مذہبی اخراجات میں جاتی ہے۔ ہمیں اس شخص کی نیک نیتی پر شبہ کرنے کے لیے کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی اور ہم اس کی آمدنی کو جواز چندہ ہا ہے وہ ہم اس کی آمدنی کو جو از چندہ ہاں ہے وہ 5200 روپیہ بیان کرتا ہے معاف کرتے ہیں، کیونکہ زیر دفعہ 5E یا E5 محض مذہبی اغراض کے لیے وہ صرف کی جاتی ہے، لہٰذا حکم ہوا کہ بعد تعمیل ضابطہ کاغذات حاضہ داخل دفتر کیے جاوے، مقام ڈلہوزی دستخط حاکم۔ اس جگہ ہم اصل انگریزی اخیر حکم کی نقل بھی مع ترجمہ کر دیتے ہیں۔ آگے اگلا بیان ہے رپورٹ، اگلا وہ یہ ہے ڈیٹ 1898 کی۔ آپ نے باقی باتیں نہیں پڑھنی، نہ اس سے کوئی تعلق ہے، صرف آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ مرزا صاحب کی وہ جو خرم نصیر رانا بتا رہا تھا نا، وہ دیہات تھے ان کے، تو آپ مائک سے باہر واپس رکھیں مجھے۔ خرم نصیر رانا اس نے تو اور بھی چولیں بڑی ماری ہیں ویسے، لیکن اس کے متعلق اس نے کیا بیان کیا؟ وہ کہتا ہے 70 گاؤں تھے ان کے، اچھا مرزا صاحب کے، تو وہ وہاں سے جب ادھر آئے تو ادھر آ کے ان کو وہ زمینیں مل گئی ہندوستان سے، جب وہ 47 کے بعد پاکستان آئے ہاں تو ان کو وہ زمینیں ملی۔ 70 گاؤں تھے تو سانوں نہیں سی پتا۔ نہیں طارق چوہان صاحب، یہ ویسے ذکر ہے کہیں کتاب میں نا، پتہ نہیں براہین احمدیہ میں یا کہاں پہ ہے، یہ ذکر ہے کہ اتنے گاؤں ہیں تھے ان کے۔ نہیں یہ دیکھیں نا، یہ پہلے کی بات ہے جب کبھی ہوتے تھے۔ ہاں وہی نا، وہ پرانی بات ہے، لیکن وہ دیکھنا پڑے گا گاؤں کا سائز کیا ہے، وہ کتنا لیکن یہاں پہ نا دیکھیں، یہ جو ابھی ساری رپورٹ پڑھ کے سنائی گئی ہے، اس میں تو جو رقم ان کو آتی ہے وہ زری، وہ تو قابل ٹیکس نہیں ہے،
तो इसके अलावा जो चंदे की रकम है वो उन्होंने कहा कि वो तो वहीं पे खर्च हो जाती है इसी जो मेहमानों के लिए और रिलीजियस पर्पस के लिए। ये ताल्लुकादारी लेकिन तारिक खान साहब जो इन्होंने सवाल पूछा है कि जब मिर्जा साहब के हालात इतने अच्छे थे तो वो किसी जमाने में अपने दावे से पहले किसी जमाने में क्लरिकल जॉब क्यों करते रहे हैं, ये सवाल है ना। नहीं देखिए, वो क्लरिकल जॉब जो उन्होंने की थी वो तो उस वजह थी कि वो पेंशन का जो मामला था उसकी वजह से वो पेंशन अच्छी खासी रकम थी जो वो जाया हो गई उनके हाथ से, तो बाद में वो चले गए वहां पे। और उनके वाले साहब तो पहले ही कहते रहते थे कि ये कोई नौकरी करे, हर वक्त मस्जिद में घुसा रहता है, तो इस वजह से फिर उन्होंने वो नौकरी कर ली होगी सियालकोट जब चले गए थे। नहीं, जो बात अभी तक आपको समझ नहीं आई है ना जी, वो पूरे अफसाने में आपने या तो गौर से सुनी नहीं है या फिर समझने की कोशिश नहीं की है। उन्होंने जिन देहातों का जिक्र किया ना, असल में मिर्जा साहब की जो आमदनी उन्होंने बयान की ना तहसीलदार ने, आमदनी इनकी बाग है और जरी जमीन है जिसकी ताल्लुकदारी इनको मिलती है। ताल्लुकदारी क्या होती है पता है आपको? नहीं। पाकिस्तान बनने के बाद आप ये कह लें कि उसका नाम नंबरदारी है। नजीर हुसैन साहब आते हैं तो इस पे डिस्कस करेंगे। जो मेरा नॉलेज है ना वो मैं तो फाइनल बात नहीं करने लगा, लेकिन उसके मुताबिक उसी का नाम नंबरदारी है। नंबरदार क्या करता है? जमींदार जो अपनी अपनी जमीनें उनमें काश्त करते हैं ना रकबा, उसमें से कुछ इनको वो मिलता है परसेंटेज, एग्जैक्ट इस वक्त मेरे ज़हन में नहीं है, पता नहीं 1% है या कितना है, लेकिन बहुत थोड़ा होता है। मेरा जो रिश्तेदार कह लें या बरादरी में से जो कादियानी है ना हमारे गांव का, वो नंबरदार है। वो मुझे एक दिन बता रहा था, उसका भाई छोटा भी बता रहा था कि यहाँ पर जमीनें जो जमींदारों के पास है उनमें से वो हमें देते हैं कुछ। नंबरदारी लेने से ये फायदा हो जाता है कि कुछ ना कुछ मिलता है, लेकिन जमींदारों से कहता क्या मिलता है, क्या मिलना होता है। जब उनकी वो गंदम वगैरह आती है ना साल बाद, जो क्योंकि हमारे इलाके में फर्ज करें कि 2 फसलें लेते हैं लोग साल की, एक वो मुंजी की चावल की और एक गंदम की। कई इलाकों में एक ही है, वो जो सामनी होती है वो नहीं होती है, वो बारिश से हो जाती है, तो उसमें कुछ ऐसा उनका परसेंटेज बिल्कुल हल्की सी छोटी सी रखी होती है, वो इनको देते हैं। कई दे देते हैं, कई जमींदार रो के दिखा देते हैं कि नहीं कुछ नहीं बचा। नहीं तो वो काम क्या करता है ताल्लुकदार जो होता है? असल में जो ताल्लुकदार है ना वो दरअसल एक सरकारी तौर पर गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंटेड एक ओहदा है। ठीक है। तो भाई आपने इन जमीनों की निगरानी करनी है, इन जमीनों को जेरे काश्त बनवाना है। अच्छा। और गवर्नमेंट से लेकर इनको ये मुराद, कोई किसी को खाद की जरूरत है या कोई पानी की जरूरत है, जो सरकारी पानी वगैरह होते हैं उनमें वो उनकी मदद करता है। तो यानी ये जमीन जो है वो मिर्जा साहब की अपनी नहीं थी, किसी और की जमीनें थी। हाँ, ये मिर्जा साहब की जाती जमीन नहीं थी। हाँ, ये मिर्जा साहब की जाती जमीन नहीं थी। ये समझ नहीं आ रही कि मिर्जा साहब के पास इतना टाइम था कि वो मतलब जमीनों का इंतजाम भी संभालते। नहीं, जमीन उनकी अपनी थी नहीं। वो तो साल बाद जो वो चक्कर लगाते थे ना, तो वो जब गंदम कटती थी तो जाके उनको जमींदारों को, जो मोटे मोटे जमींदार होते थे जिसकी 25 एकड़ है, किसी की 30 एकड़ है, किसी की 10 एकड़, उनसे जाके जो कुछ मिलता था वो ले लेते थे। अच्छा, थोड़ी सी आमदनी वो थी। और असल मिर्जा साहब की जो आमदनी है वो बाग की है। 4 देहातों की जमीन की ताल्लुकदारी की जो आमदनी है वो कितनी बताई है उसने? 200 रुपया। और बाग की आमदनी कितनी है? 500 तक पहुंच सकती है। आप अंदाजा कर लें कि जो बाग की आमदनी है वो 4 देहातों की ताल्लुकदारी से भी 2 गुना ज्यादा है। जो बाग की आमदनी वही असल आमदनी है मिर्जा साहब की। जो अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि
तलकादारी की सालाना ਜੀ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੰਬਰਦਾਰ ਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਨਾ ਇੱਧਰ ਚੋਲਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਰਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਸਤਿਤਾਅਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਤਨੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫਸਲ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਨ ਕਹਿ ਲਓ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਲਗਾਨ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੇਮ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਖਤਸਰ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ। 10 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਹੋਏ ਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। तलकादारी की सालाना तखमीनन जमीन की तखमीनन 300 रुपया सालाना, ठीक, और बाग की सालाना तखमीनन 200-300 रुपया, 400 और हद दर्जा 500 रुपया के अंदर। यानी तलकादारी की 300 रुपया सालाना और बाग की सालाना हद 500 तक भी जा, यानी 2 गुना तकरीबन हो जाती है। ठीक है। बाकी असल आमदनी है वो तो मैंने जिस तरह बयान किया है ना, वो इतनी थोड़ी होती है। ताल्लुकदारी की जो आमदन है ना, वो इतनी थोड़ी होती है कि आपके बाग की आमदन से भी थोड़ी होती है। यानी अगर सालाना 300 रुपया हो तो वो तो मतलब है कि महीने के कितने 50 रुपए भी नहीं बनते। नहीं, उसमें आप कह सकते हैं कि उस जमाने का 300 रुपया वो एक अच्छी बड़ी रकम थी साल की। 300 रुपया वो आज के आप कह सकते हैं महीने के 25 रुपए बनते हैं, मतलब 25 रुपया महीने का 25 रुपया 25 रुपया। लेकिन 25 रुपए का हो सकता है उस जमाने में काफी अहमियत हो। हाँ, नहीं ये तो बात ठीक है। रुपए तो तनख्वाह थी ना मिर्जा साहब की। हाँ, 15 रुपए इनकी महाना तनख्वाह लगी थी, बिल्कुल ठीक। हाँ, सियालकोट में। हाँ, सियालकोट में। तो इतनी है, वो 25 रुपया बन जाती है महीने की। बहरहाल वो जमीनें इनकी अपनी नहीं थी, मेरा कहने का मतलब ये ये तो ठीक दुरुस्त बात है। जमीन इनकी अपनी नहीं थी। ये जमीन का जो वो मुरब्बी बोल रहे हैं ना, खुरम नसीर राना झूठ बोल रहे हैं कि वो चार मिर्जाई इसके सिलसिले में बहुत झूठ बोलते हैं। मिर्जा साहब फलाने थे, ये थे, वो थे, खाम खादे झूठ। हाँ, रईस कादियान वो जरूर कहलवाते थे अपने नाम। वो टाइटल था एक, वो इससे मतलब ये नहीं था कि वो सारे के सारे कादियान के मालिक थे। रईस कादियान कहलवाने की वजह भी वो ताल्लुकदारी है। हाँ जी, वो जो ताल्लुकदारी थी ना इनकी, जिस तरह आज कोई लंबरदार कहलवाता है गाँव में, तो वो भी अपने नाम के साथ रईस लिख सकता है। हाँ, ये थी वजह। हाँ, लेकिन आमर नजीर साहब जी उन्होंने अपनी किताब बराहीने अहमदिया च अपना तारफ करवाया, खानदानी तारफ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। मेरा ख्याल है, मुझे थोड़ी देर होगी पढ़ा। किताबुल बरिया में करवाया है, वो मैं पढ़ देता हूँ अगर आप कहते हैं तो। नहीं उसने सारा ना पढ़े यार, सिर्फ इतना बता दें कि वहाँ पहले वो बताते हैं कि मेरे पास 70 गांव मेरे बाप दादा के पास हुआ करते थे। वो सुन थोड़ा तो सारे खत्म हो गए थे ना। कहते हैं कि मेरे जो थे ना परदादा साहब, मेरे परदादा साहब, मिर्जा साहब के परदादा साहब फौत हो गए, तो बजाय उनके मेरे दादा साहब यानी मिर्जा अता मोहम्मद फरजंद को गद्दी नशीन बने। उनके वक्त में खुदा ताला की हुकूमत और मसले से लड़ाई में सिख गालिब आए। उस वक्त हमारे बुजुर्गों पर बड़ी तबाही आई और वो पंजाब की एक रियासत में पनाह गजीर हुए। थोड़े अरसे के बाद उन्हीं दुश्मनों के मंसूबे से मेरे दादा साहब को जहर दी गई। फिर रंजीत सिंह की सल्तनत के आखिरी जमाना में मेरे वालिद साहब मरहूम मिर्जा गुलाम मुर्तजा कादियान में वापस आए, यानी पहले ये कादियान में नहीं थे। और मिर्जा साहब मसूफ को अपने वालिद साहब यानी मिर्जा साहब के दादा साहब से अपने वालिद साहब के देहात में से 5 गांव वापस मिले। जी चलिए, वो 70 कितने गए? ठीक है। फिर जमीन पे वो 4-5 देहात जो इनको मिले हैं ना, वो ताल्लुकदारी वाले ही हैं। बाकी वो इनके दादा के पास मान लें कि 70 देहातों की ताल्लुकदारी थी, इनके पास 5 ही रह गई। हाँ मेरे भाई, शायद इसका जिक्र उसमें वो किताब थी ना, चीफ ऑफ पंजाब। हाँ, नहीं पहले मुझे ये बताएं आमिर नज़ीर साहब, वो खुर्रम ने क्या कहा है?
हाँ वो सुनाते हैं वो मैं सुना देता मिर्जा साहब के जो दादा थे ना, हाँ दादा की भी तो आगे औलाद थी ना, इनके चचा, फिर चचा के आगे बेटे। तो इन्होंने जब जमीन वो 70 गांव वापस लेने के लिए किया ना मुकदमा, जो इन्होंने बताया हुआ है कि हमने वो मुकदमा किया कि हमारे 70 गांव हुआ करते थे, सिखों के दौर में छिन गए, तो उन्होंने हिस्सा नहीं दिया, अपना हिस्सा चचाजाद भाइयों ने। मिर्जा साहब के जो दूसरे चचा थे, उनके बेटों ने कहा कि हमें वो जमीन नहीं चाहिए, हमारे पास पैसे नहीं, हम मुकदमा नहीं कर सकते। ठीक है। तो मिर्जा साहब ने अपने तौर पर अपने खर्चे पर करके वो अपना हिस्सा ले लिया, और इनके इसीलिए इनको सिर्फ वो 4-5 देहात मिले तलकदारी के, वरना इनके दादे के ठीक है 70 गांव ही होंगे, मान लें, इनकी बात ही मान लें। हाँ जी। तो इनको फिर 4-5 देहातों की लंबरदारी मिल गई कि आप इनसे वो खराज वगैरह लेके तो वो इकट्ठा करके कर लें। ये था इनका काम। मैं सुना देता हूँ। बहरहाल ये आपने बड़ा अच्छा किया कि आपने ये टेकअप किया। ये आदमी पढ़ तो लेता है लेकिन इस पर कभी गौर नहीं करता, तो अच्छी बात है कि जो जमात अहमदिया के बानी है हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम, उनके वालिद 70 गांवों के मालिक थे, एक रईस थे कादियान के। आप भी अगर आप उनकी किताबें पढ़े तो आखिर में लिखा होता है रईस कादियान। तो सर एक रईस का बेटा क्लरिकल जॉब क्यों करता था? वो एक अलग क्वेश्चन है, मैं वो बाद में बता दूंगा आपको। तो वो रईस कादियान थे और बहुत बड़े जागीरदार थे, और जब पाकिस्तान बना वो खानदान पाकिस्तान से हिंदुस्तान से पाकिस्तान मुंतकिल हुआ, तो वो जायदादों की मुंतकिली जो कि कानून के हिसाब से मिली, तो उनकी अपनी जायदादें हैं जो कि खानदानी जायदादें हैं, ना कि चंदे से वसूल बनाई गई, बल्कि उनकी जो नस्ल दर नस्ल आगे मुंतकिल होती गई है, वहां से उनकी आमदनी है, उनके अपने जराए हैं आमदनी के। कोई चंदे के पैसे से, ये झूठ बात है कि चंदे के पैसे से इनके अखराजात पूरे होते हैं, ये सरासर झूठ के सिवा कुछ नहीं। जी, ये है वो बात कि वो कह रहे कि वो जो गांव थे 70 वो फिर मुंतकिल हुए पाकिस्तान में। झूठ, बिल्कुल झूठ, 100% झूठ। ये जो लफ्ज दूसरे के मेरी बात सुने, जब मिर्जा साहब की वफात हुई है ना, तो ये इन्होंने खुद ही लिखा हुआ है कि हजरत अम्मा जान ने अपने बच्चों को बुला के कहा, तुहाडे अब्बा जी सवाए दुआवां दे तुहाडे वास्ते कुछ नहीं छड़ के गए। तो ये वो 70 गांव किधर थे? वो अम्मा जान ने उस वक्त उनको नहीं पता था कि 70 गांव भी हैं और 7 दुआएं भी हैं? नहीं, वो तो चलें ठीक है। मैं ये कहने लगा हूँ कि खुर्रम नसीर राणा ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए ना जागीरदार वाले, हाँ, ना मिर्जा साहब ने अपने बारे में इस्तेमाल की, ना उनके बेटों ने इस्तेमाल किया। बिल्कुल। ना उन्होंने कहा कि हम जागीरदार हैं, ना इनके बाप ने कहा कि जागीरदार। मरब्बी उनको जागीरदार बना रहे। भाई जागीरदार नहीं होता वो, लंबरदार जागीरदार नहीं होता। हाँ। जो ताल्लुकदार है वो जागीरदार नहीं होता। और दूसरे है कि जब ये शिफ्ट हुए ना पाकिस्तान, जब डिवीजन हुई है, उस वक्त मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद ने जो कादियान में इनकी जो जगह थी वहां पे, तो इन्होंने 300 दरवेश रखवा दिए अपनी उस चीज की हिफाजत के लिए। वापस आके क्लेम किया, अपने जितने भी अहमदी आए थे ना उन सबको इन्होंने कह दिया कि आपने क्लेम कोई नहीं करना क्योंकि हमने वापस जाना है। और फिर उन अहमदियों के सारे क्लेम इसने खुद ले लिए मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद ने। तो वो क्लेम वहां पे कोई ऐसा नहीं था कि वो छोड़ के आए थे तो वो वापस इनको मिली। ये इन्होंने चक्करबाजियां की थी उस वक्त। फिर इनको जमीन जो मिली है ना यहाँ पर सिंध के इलाके में, हाँ, जो ये कहते हैं कि ये इधर आए इनका दूसरा खलीफा, तो वो फिर इनको मिली है, वो यही जमीन थी। इनको गवर्नमेंट ने कहा कि जो ताल्लुकदारी आपको वहां मिलती थी ना, वही आप यहाँ से जाके ले लें। ये इलाका गैर आबाद पड़ा हुआ है, वो जमींदारों को दे के उनके अंदर वो काश्त करवाएं, उसको आबाद करवाएं जमीन को। इतनी सी बात है। ना वो जागीरदार थे, ना उनकी अपनी कोई जागीर थी। लेकिन सिंध की जमीनें तो इनके कब्जे में है, वहां पे तल्लकदारी तो नहीं है, सिर्फ तल्लकदारी है। तल्लकदारी है, उनकी जमीनें कब्जे में है नहीं इनके। असल में ये तल्लकदार कई दफा उसको कब्जा कर लें तो एक अलग बात है, लेकिन वो उसकी अपनी जमीन नहीं होती तल्लकदार की। हाँ, लेकिन सिंध की जमीनें इनकी अपनी है। इनका जो वो मिर्जा मसरूर का जो साला है वो जी तलकदारी वाली जमीन होंदी है ना, ਤੁਹਾਡਾ एग्रीमेंट खत्म होवे ते किवें ਤੁਹਾਨੂੰ गवर्नमेंट ऑप्शन ਦਿੰਦੀ है कि ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਤਲਕਦਾਰੀ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਾਗੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। हाँ, यह हो सकता है कि ताल्लुकदारी ਨੂੰ
ਤਾਲੁਕਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਚੰਦੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਲੁਕਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ 4 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਲਾਹੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ लगाओ अपने नहीं, जितना आगे जाएंगे उतना मसला खराब, वो एक हम अलग बहस में सारा मसला ही खराब है। वो कह रहे हैं तर्क भाई, वो कह रहे हैं कि वो जो 70 गांव थे ना, जब 47 में ये पाकिस्तान में आए हैं ना, तो ये जो जैसे उस जमाने में था कि कुछ जमीन के बदले कुछ जमीन उधर से इधर मिलती थी हिसाब किताब के जरिए बराबर 100% भी लोगों को मिली है। मौलाना फनाउल्लाह अमृतसरी का वहां पर प्रेस था, तो वो लाहौर आए हैं तो उनको सरगोदे में प्रेस दिया गया है। जिसकी वहां कोठी थी यहाँ आया है, तो अगर वो हिंदू कोई कोठी छोड़ के दौड़ गया, सिख छोड़ के दौड़ गया, उसको कोठी दी गई है। सबूत लोगों ने जो दिए हैं ना, जितनी जमीन के वहां दिए हैं, ये जो मेरे जो ससुराल है ना पाकिस्तान में, ये भी कश्मीर में जमीनें छोड़ के आए थे। जितने मरबे ये जमीनें वहां छोड़ के आए थे, उतने ही मरबे इनको यहाँ जमीन मिली है बॉर्डर पर, मुझे पता है जमीन का। लेकिन अगर आप तारीख अहमदियत पढ़े ना, उसमें मिर्जा महमूद साहब ने आके लोगों को कहा था अच्छी अच्छी जगहों पे और अच्छे अच्छे जो है ना इमारतें, उन पे कब्जा कर लें। ये उन्होंने को लिखा हुआ वहां पे सारा। नहीं, अगर ये बात देखी जाए लामा साहब, चले आपके तो होगा ना 100, अगर 70 गांव हो तो उसके मुकाबले में आपको कम से कम 20 गांव जितनी जमीन तो मिलनी चाहिए। नहीं, इनको 70 गांव मिलते, अगर इनके अपने 70 गांव 70 मिलते फिर बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। इनके 70 गांव नहीं थे, इनके पास 4 देहातों की ताल्लुकदारी थी। वो ताल्लुकदारी यहाँ जब आए तो गवर्नमेंट ने यहाँ दे दी। इसके बाद इन्होंने चंदे से वो जमीन खरीद ली है, नहीं खरीद ली है, हम नहीं जानते। अगर इन्होंने सिंध में कोई जमीन खरीदी है तो वही ताल्लुकदारी वाली जमीन खरीद ली होगी, माल जो चंदा लेते थे उससे, लेकिन वो इसकी अपनी जमीन नहीं थी, ना बशीरुद्दीन की ना उनके वालिद। तो वैसे भी एक अकली बात है कि अगर तारिक चौहान भाई 2 पॉइंट इसमें मैंने अभी जो पढ़ी है ना किताब, जहां से मैंने वो पढ़ा है कि उनके गाँव 2 पॉइंट है। एक तो पॉइंट ये है कि अगर उनके पास इतनी जमीन उनको पाकिस्तान में मिली होगी, जैसे खुरम राणा कह रहा है कि मिली है, तो उन्हें ये रबुआ की जमीन लीज पे लेने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, 70 गांव की अगर आपके पास जमीन हो रहा तो आपने क्यों रबुआ की जमीन ली? इससे ज्यादा आपको मिल सकती है। नहीं, वो तो गप है, वो तो गप है। नहीं, एक मिनट, उमर फराज भाई, क्लेम जब करता है ना बंदा वहां से, जिन लोगों ने आके क्लेम किया मशरकी पंजाब से मगरबी पंजाब में आकर, वो क्लेम कईयों का 100% वो प्रूव हुआ, किसी का 70%, 90% डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप सबूत दे देते हैं कि वहां पर आपके 10 मरबे जमीन थी, ये उसका फर्द है, ये उसका जमीन की डॉक्यूमेंट्स है, तो गवर्नमेंट आपको 10 मरबे जमीन ही देती है अगर सबूत दे। लेकिन लोगों के पास सबूत होता नहीं। दूसरी बात यह कि लोग क्लेम बड़ा कर देते हैं, उतनी चीज होती नहीं, उस वजह से उसमें कमी बेशी हो जाती। लेकिन अगर क्लेम पूरा प्रूव हो जाए तो पूरी मिल जाती है जितनी आप वहां छोड़ के आए। मैंने जैसे कहा मेरे रिश्तेदारों को मिली है यहाँ पर जमीन। अच्छा, एक और मजे की बात है लामा साहब, जहाँ पे लिखा है ना कि उनके पास 5 गांव थे, उसी के नीचे लिखे थे मिर्जा साहब कि मेरी पैदाइश 1839 की हुई है। उसको नहीं मानते, उतली लाइन को मानते, नीचे जो मिर्जा साहब ने अपनी तारीख पैदाइश बताई है उसको कोई नहीं मानता। वो तारीख पैदाइश तो मिर्जा साहब ने कई जगह मुख्तलिफ लिखी हुई है, ये भी है एक ही लिखी हो तो फिर भी आने कहे कि जी वो बिल्कुल सही है। कहीं वो कुछ लिख देते हैं, कहीं कुछ लिख देते हैं, वो अंदाजे से है सारे। अगर वहां कोई चहारम जमीन छोड़ के आया है उमर फराज साहब, और निरी रेतली जमीन या सोम, चहारम तो हमारे नहीं होती, मेरे ख्याल सोम ही होती है, अव्वल दोनों सोम ही होती है, चहारम भी होती होगी। लेकिन अगर कोई सोम जमीन यहाँ छोड़ के आया है, यहाँ वो आता है, अगर उसको अव्वल जमीन दी जाती है काश्तकारी के लायक, तो जाहिर है कि उसकी वो काम मालियत लगा के काम कर देते हैं। उधर फर्ज करें वो 20 एकड़ छोड़ के आया है, वो चहारम है, यहाँ आएगा, अगर उसको अव्वल जमीन मिली है तो हो सकता है 2 एकड़ दे दें, ऐसे हो जाता है। लेकिन बहरहाल मिर्जा साहब की कोई जाती जमीन नहीं थी वहां पर, ना ये जागीरदार थे, उसने झूठ बोला है। कोई जागीरदार नहीं थे, कोई जागीरदार नहीं थे, वो ताल्लुकदारी थी जमीनों की इनके पास।
और वो एक ऐसे ही है जैसे लंबरदार की एक आमदनी होती है सालाना, वो वहां से खराज का मिलता है। मतलब तलकदारी ये थी कि 25 रुपए महीने मिलते थे, ये है तलकदारी। हाँ 25 रुपए महीने के, और अगर नौकरी करते तो 15 रुपए वहां से मिल जाते। जितनी इनकी तनख्वाह थी ना, उससे आप ये कह लें थोड़ी सी ज्यादा पैसे मिल जाते थे, 10 रुपए ज्यादा मिलते थे महीने। आज ये पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि मिर्जाइयों को झूठ बोलने की जरूरत क्या है, किसके सामने क्या साबित करना है, खाम खा के झूठ बोलने का क्या फायदा? नहीं, वो फंसा हुआ मौजूद है, फंसा हुआ था ना। डॉक्यूमेंटेशन है। वो मुल्हिद के सामने फंसा हुआ था, वो कह रहा था कि तुम्हारे मिर्जा मसूद ने कोई एक पैसा भी जिंदगी में कमाया, उसका क्या जवाब देता? ये तो पंचर लगा। इसका जवाब पहले उसको तैयार करके जाना चाहिए था ना। अभी उनको पता है, कई दफा ये सवाल उनसे किया जाता है, उसको चाहिए था कि कोई माकूल जवाब हो। ये तो बिल्कुल झूठ है ना। होता ने जी फेरदा सी पिया तो मैं क्या चौहान साहब, जेडी जॉब मिर्जा साहब सियालकोट करदे सी, वो जॉब आज कोई बंदा कचहरी करे, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ? ਉਹ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਜੌਬ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜੱਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ 25-30 ਤੇ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉੱਥੇ ਤਨਖਾਹ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ 10,000 ਉੱਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਆਮਦਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਲਕਦਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਮਦਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ ਕਲੈਰੀਕਲ ਜੌਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ। हेलो, वो आया जो थल्ले एक मलंग पे, कहता झूठ मत बोलो मिर्जा साहब 70 गांव के मालिक थे। मलंगो हाय हाय मिर्जाइयो, तो साडी किस्मत च रसवाई है मिर्जाइयो, झूठ बोल बोल के खाम खा दे झूठ। अगर ये ना कोई फायदा ना कोई मिर्जा साहब ਨੂੰ ਉਹਦਾ फायदा है 70 गांव ਦੇ उन्होंने ਤੁਸੀਂ अगर मिर्जा साहब के वालिद 5 गांव के मालिक थे तो वो 70 गांव के मालिक कैसे होते? वही ना। नहीं, अगर 70 गांव के मालिक थे तो रबवा जो है इसको आके लीज पर लेने की, और छोटा सा एक गांव, वो 70 गांव में से एक गांव मिर्जाइयों का बात कर लेते, सारे मिर्जाई वहां शिफ्ट कर लेते, 2 गांव 3 गांव बना लेते, 5 गांव अपने आबाद कर लेते। रबवे में आके पहाड़ियां तोड़ तोड़ के तो वहां पर लीज पर लेकर अपने लोगों को वहां पर साथ झुकाने की, छुपाने की जगह लेकर दी है। तो वो 70 गांव जो अगर वहां छोड़कर आए थे, मिले इनको पाकिस्तान में 70 गांव कहाँ है? वो असल बात यही है कि वो जो उसने उनको सवाल किया था ना, वो यही था कि मिर्जा खानदान ने कभी तीला नहीं तोड़या। जी ये गल बिल्कुल दुरुस्त है, चंदे का माल खाने नजराने खाते भाई। मिर्जा ताहिर खुद कह रहा है जब ये बना था कि जी मुझे ये कहा गया जी आपका वजीफा मुकर्रर करेंगे, मैंने कहा नहीं, मुझे वजीफा ना, मुझे अल्लाह ताला देगा। अल्लाह ताला की देगा? नजराने। ਇਹ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਅਸੂਲਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਮਾਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨਸੂਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ 100 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਿਆ, $100 ਮਿਲਿਆ, $10 ਤੁਸੀਂ ਵਸੀਅਤ ਚੰਦਾ ਦੇ 90 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਹੈ। तो ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਾ। ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰੱਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਲਗਜ਼ਰੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਕੱਠੀ। अच्छा, एक गांव ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਵੀ 2-3 ਮੁਰੱਬੇ ਜ਼ਮੀਨ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਗਾਂव ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 2-3 ਮੁਰੱਬੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ 70 गांव ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣ ਜਾਏ 70 गांव। ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੰਬੂ ਲਾਣ ਦੀ? ਰਬਵੇ 70 गांव ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਭੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, 200 ਮੁਰੱਬਾ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਭੀ ਹੁੰਦੀ, 300 ਮੁਰੱਬਾ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਭੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਰਬਵੇ ਉਹ ਕਈ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬੇਲਟਾ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸਨ। अच्छा, एक सवाल मैं फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜੱਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਜੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ? ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 70 गांव ਹੈ ਸਨ, ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਚੋਰਾਂ ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਜ਼ਾਲਮਾ ਤੁਸੀਂ 70 गांव ਖਾ ਗਏ। ਹੱਦ ਹੋਈ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਜਰ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਭ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਖਾ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸ਼ਾਨ,
ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦਾਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਤੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी 13 और 14 अगस्त की रात ਨੂੰ अमृतसर तो वैसे भी लाहौर बिल्कुल नजदीक है, एवं कोई 10 किलोमीटर शायद 15 कितना बनता मैंने एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन सामने नजर आता वाघा बॉर्डर। अमृतसर को मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी शाम की नमाज तो बाद अपने बेटे ता मुहम्मद का जनाजा पढ़ के उन्होंने दफन करके ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੋਟਲੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਜ਼ੇਵਰ ਪੈਸਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਪਾ ਕੇ 4 ਪੋਤਰੇ, ਇੱਕ ਨੌਂ, ਇੱਕ ਬੀਵੀ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਬਚ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਛਾਪਰ ਕਹਿ ਲਓ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਥੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਝੋਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜੋ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ 13 और 14 अगस्त की रात ਨੂੰ। ਮਕਾਨ ਔਰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ, ਛਾਪਾਖਾਨਾ, ਕੁਤਬਖਾਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਤੂਬਾਂ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਪਿੱਛੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾੜ ਸੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਛਾਪਾਖਾਨਾ ਕਿਸੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਉਧਰ ਗਏ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਛਾਪਾਖਾਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪਾਖਾਨਾ ਸਰਗੋਧੇ ਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛਾਪਾਖਾਨਾ ਉੱਥੇ ਛੋੜ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛਾਪਾਖਾਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਛੋੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੌੜ ਗਿਆ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚਲਾ ਲਓ। ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉल्लाह अमृतसरी ਸਰਗੋਧੇ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਛਾਪਾਖਾਨਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਲੱਭਣਾ। ਇਹ ਆਏ ਨੇ 13 और 14 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪਾਖਾਨਾ ਹੈਂਡਓਵਰ ਹੋਇਆ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, 7-8 ਤੇ 4 6-7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ਸੀ ਛਾਪਾਖਾਨਾ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਛਾਪਾਖਾਨੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਫਾਈ ਸਫੂਈ ਪੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲਜ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। 15-20 ਦਿਨ ਬਿਮਾਰ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ 4 ਪੋਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਨ ਉਦੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਲਿਆ ਛਾਪੇਖਾਨੇ ਨੂੰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਰਫਾਨ-ਉਲ ਹਸਨਾਈ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਰਗੋਧੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਮੇਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਥੋਂ ਪੋਟਲੀ ਸਿਰ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਛਾਪਾਖਾਨਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ 10 ਮਰਬੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ 70 ਪਿੰਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਸਣ, ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲੇਮ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 70 ਪਿੰਡ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, 17 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਮਲੰਗ ਨੇ, ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਮਲੰਗਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਣਾ 70 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਕਜ਼ਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ 70 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। हाँ, बस प्रोपेगेंडा किया है ना भाई, कुछ खुद तो इल्म हासिल करना नहीं ना कुछ पढ़ना है, बस जो सुनी सुनाई ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਔਰ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧੇਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਬੜੇ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰ ਸੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹਾਨੀ ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਦੀ, ਤੇ ਫਿਟੇ ਦੂਰੋਂ ਫਿਟੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲਾਲ ਭਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 17 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਜ਼ਾਤੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਰੱਬੇ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ, ਇੱਥੇ ਏਡੀਆਂ ਗੋਡੇ ਰਗੜਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ। ਬਿਲਕੁਲ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਮਿਲੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ 20-30 ਮਰਬੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਜ਼ਾਤੀ ਰਕਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂ, ਸ਼ੇਖ ਬਟਾਲਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ 4 ਮਰਬੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਇੰਝ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੁਕਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਸਤੇ ਨਰਖਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਸ਼ੇਖ ਬਟਾਲਵੀ ਨੇ 4 ਮਰਬੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਥੋਂ ਲਈ। ਇਹ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ 75-77 ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲਿਦ ਫੌਤ ਹੋਇਆ, ਗੁਲਾਮ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਨਹੀਂ, मेरा 75 और 70 के दरमियान की डेट। मिर्जा साहब ने बिल्कुल किया है कि जब मेरा बाप मरा तो मुझे ये नान नफके की फिक्र। हाँ बिल्कुल, गुजारा किस तरह होएगा मेरा। अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दहु उस वेले इल्हाम होया सी ना उन्हां दा।
ਉਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਉੱਥੋਂ 64 ਵਿੱਚ 68 ਵਿੱਚ 68 ਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮਿਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤਲਕਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਸਨ ਵਾਪਸ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੀ ਫਿਕਰ ਸੀ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਸੀ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹੜਾ 17 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿੰਝ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਫਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦੀ ਬੀਵੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਬੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਬਗੈਰ ਖਾਣਾ ਪੀਣ ਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ रोजे रखने शुरू कर देते। ये जो मस्जिद अक्सा की जमीन थी जो वालिद साहब मिर्जा गुलाम मुर्तजा ने मस्जिद बनाई थी, वो जगह भी खरीदी थी 700 रुपए दे के। वो भी इनकी अपनी जमीन नहीं थी, सिखों से खरीदी थी इन्होंने नीलामी में। इनकी कुछ भी जमीन शमीन नहीं है, ना ये जागीरदार है। उसने झूठ बोला है कि मिर्जा साहब जागीरदार थे और उनका बाप दादा जागीरदार था, झूठ बोला उसने। बाग सिर्फ इनका अपना था, जाती बाग की आमदन थी। वो अब पता नहीं एग्जैक्ट कि वो कितने एकड़ पर मुश्तमिल बाग था, वो अभी भी वहां पर है मेरे ख्याल है। कुछ लोग गए हैं, उनको अंदाजा होगा वो कितना बड़ा बाग है। उसी बाग से इनकी आमदन थी, असल इनकी आमदन बाग की आमदन थी। उसी बाग की आमदन से महरूम करने के लिए सुल्तान को और फजल को मिर्जा साहब ने ये 1898 में जो लिखा हुआ है ना कि बाग रहन रखा अपनी बीवी नुसरत जहां बेगम के आगे, वो इसलिए रखा था कि उनको इसकी जो आमदनी है वो ना मिले फजल और सुल्तान को। वो बाग जो था उसका इन्होंने लिया 5000 रुपया बीवी से बकौल इनके। वो तो खैर जाली रजिस्ट्री तैयार करवाई थी ना। वो तो इसमें दर्द है ना कि 4000 रुपया जेवर और 1000 नकद। हाँ, तो वो मिर्जा साहब ने दरअसल वो जमीन अपने बेटों को उनको फारग करने के लिए, पहली बीवी के बेटों को नहीं, ये उन्होंने कहीं लिखा था ना, ये तो आपके अपने स्पेकुलेशन है। महमूदी बेगम के वक्त की बात होगी फिर अगर ये किया तो। नहीं, ये 98 की बात है। उस वक्त महमूदी बेगम वाला मामला मतलब है गर्म था, ये कह लें आप, क्योंकि यही ना ये जिन दिनों में इश्तिहार लिखा मेरे ख्याल से उन्हीं दिनों का आसपास। हाँ, 92 में शादी हुई, 94 में वो उसकी डेट खत्म हुई है मरने की, अक्टूबर में। तो 95-96 के बाद ये 97 में शायद बीवी के आगे रहन रखा है, जो रहन रखा है ना बाग नुसरत जहां बेगम के आगे, उसकी रजिस्ट्री करवाई है पता नहीं 30 सालों के लिए। वो भी सीरत अल महदी में लिखा हुआ है कि 30 सालों तक ये जो बाग है ये मेरी बीवी के आगे रहन है। अगर मैं ये पैसे देकर 5000 रुपया इससे वापस छुड़ा लूं तो ठीक है, अगर 30 सालों में ना छुड़ा सका तो बाग की मालकन यही हो जाएगी। तो वो फिर नहीं छुड़ा सके ना, मिर्जा साहब तो 30 साल जिंदा ही नहीं रहे, तो बेटों ने क्या करना था? बेटे तो थे ही इनके, बीवी भी इनकी, बेटे भी इनके, तो वो फारग कर दिया उनको, सुल्तान फजल को। ये मिर्जा साहब ने बाकायदा एक गेम डाली थी, वरना 5000 रुपया नुसरत जहां बेगम से लेकर मिर्जा साहब ने, पहली बात है कि नुसरत जहां बेगम के पास तो 5000 रुपया था ही नहीं। सच्ची बात तो यही है ना जहां साहब, वो आना कहाँ से था 5000 रुपया? वो तो एक संदूक में अपना जहेज लेकर आई थी दिल्ली से, उसमें 2 जोड़े कपड़ों के थे, 2 जोड़े जूतों के थे। उसको नासिर नवाज ने उसको, आप बयान ऐसे करते हैं जैसे आपने संदूक खुद पैक किया था। लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है उसको। अच्छा आप ये भी मैंने पढ़ा हुआ है, उसको भी जंदरा लगा के चाबी इसके हाथ में, मिर्जा साहब के हाथ में पकड़ा दी मीर नासिर नवाब ने। भाई ये गुजारना है एडा नवाब सी कि वो एडा नवाब साहब सी कि वो 100 रुपया जवाई को लेके छड्डना हुंदा सी, तो 100 रुपया बिल्कुल नवाब देखो, नवाब एडा वड्डा सी। एक छोटी सी बात बता दें कि ये एक मिनट बिलाल भाई, वो कितना वड्डा नवाब सी कि जेड़ा दिमाग को 100 रुपया लेके ਤੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਛੋੜਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, 100 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਖਰਚਾ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੈਂਦਾ 100 ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸੰਦੂਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਧਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ? ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ? ਹਾਂ ਵਾਕਈ
ਸਰ ਉਹਨੇ 2 ਜੋੜੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ 2 ਜੋੜੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੇ ਸੰਦੂਕ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਜੰਦਰੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਚਾਬੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਅਸਾਬ ਅਹਿਮਦ में ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਮਹਿਲ ਉਹਦੇ ਚ ਸੀਰਤ ਮਹਿਦੀ ਚ ਵੀ ਹੈ। ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ ਚ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਟੋਟਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਸੀ ਉਹ 5000 ਰੁਪਏ ਜਿਹਦੇ ਇਵਜ਼ ਬਾਗ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਨੁਸਰਤ ਜਹਾਂ ਬੇਗਮ ਕੋਲ? कुछ भी नहीं सी, वो मिर्जा साहब भी पैसे थे। अच्छा ये देखें, ये आप ये जो है तारीख अहमदियत जिल्द 10 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਗਿਰਦ ਗਿਰਦ ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ। तो मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद और उनकी जमात के अक्सर अफसरान लाहौर पहुंचकर उस इलाके की अक्सर इमारतों पर कब्जा किया। रतन बाग और उसकी मुलका कोठी मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद के हिस्सा में आई, मगर बाग की देखभाल में कोई खास तवज्जो नहीं दी गई। मतलब उस वेले उन्होंने कहा सी कि जड़ियां इमारतां ने ना जिथे को खाली नजर आती कब्जा कर लो देते और अच्छी इमारतां जिहड़ी अच्छी जगह ते होन, यानी वो सारे कब्जे ही सी इन्होंने कीते आके। क्लेम क्लूम उन्होंने कुछ कीते ही नहीं। पहले तो क्लेम उन्होंने किया कि जी वो जमात नु क्या क्लेम किसी ने नहीं करना, और अपनी जिन्नी भी यदि जायदाद सी और फिर 313 बंदे बिठा आए सी। ਉਹੀ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਲੁੱਟੀ ਗਈ। अच्छा तारिक यानी भाई, जिसे बिठा के आए थे बंदे वो लुट्टी कितों गई? तो तारिक भाई आप एक ये भी देखें कि जब इनसे ये पूछा जाता है ना कि मिर्जा साहब हाजी को क्यों नहीं गए, तो इनकी तरफ से यह आता है कि उनके पास इस्तात ही नहीं थी। हाजी तो इस्तात की बात नहीं थी, और रास्ते का अमन भी होना चाहिए, वो वजह थी। अच्छा, ये सीरतुल महदी में ना एक और रेफरेंस है, ये मैं पढ़ता हूँ, ये आप देखें, 2 रेफरेंस है बेसिकली। तो एक तो रेफरेंस ये है सीरतुल महदी की पहली जिल्द में। शायद खुरम उत्ते आ यार दस तू है को रोशनी पाया ते जेड़ा 70 देहातां दे मालक सन मिर्जा साहब और राह दरा साहब दा मुंह बंद कर रहे। यानी खुद अगर अम्मा जान कह रही हैं अपने बच्चों को कि वो कोई जायदाद छोड़ के नहीं गए, तो क्या अम्मा जान को हम कहें कि उन्होंने झूठ बोला था मिर्जा साहब की वफात के ऊपर उनकी जस्दे खाकी पड़ा हुआ है? अच्छा, ये जो इनकी जायदाद जब्त हुई थी एक तो सिखों के दौर में हुई थी ना, सिखों के दौर में, और सीरतुल महदी में लिखा है कि इसके बाद अंग्रेज आए तो उन्होंने हमारी खानदानी जगीर जब्त कर ली। ये गोरों के दौर में भी हुआ, मतलब अंग्रेजों ने भी किया। हाँ बिल्कुल। और सिर्फ 700 रुपया सालाना की एक एजाजी पेंशन नकदी की सूरत में मुकर्रर कर दी, जो हमारे दादा साहब की वफात पर, यानी मिर्जा साहब के जो दादा साहब थे यहाँ, उनकी वफात पर या उनके वालिद साहब की वफात पर सिर्फ 180 रह गई, और फिर ताया साहब के बाद बिल्कुल बंद हो गई। 10। अब मतलब ये कि ये जो जागीर थी जो सिखों की बाद जो इनके पास थोड़ी बहुत रह गई थी गोरों के दौर में, वो भी जब्त हो गई। उसके बाद पेंशन लगी, और जब इनके ताया फौत हुए तो वो भी बंद हो गई, तो जायदाद तो कुछ भी ना रही। बिल्कुल। ये भी उसी के और मिर्जा साहब कहते मेरे को एक ठन्नी सी जो वफात तो पहले, तो उन्होंने क्या टांगे वाले उन्होंने ठन्नी दे विच जिन्नी सैर करानी करा दे जी। बल्कि एक इसी के नीचे और रेफरेंस है कि मौलवी रहीम बख्श साहब एमए ने कहा कि उनसे मिर्जा सुल्तान अहमद साहब ने बयान किया कि एक दफा मिस्टर मेकान की डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर कादियान दौरा पर आए। रास्ते में उन्होंने दादा साहब गुलाम मुर्तजा से कहा कि आपके ख्याल में सिख हुकूमत अच्छी थी या अंग्रेजी हुकूमत अच्छी है? दादा साहब ने कहा कि गांव चलकर जवाब दूंगा। जब कादियान पहुंचे तो दादा साहब ने अपने और अपने भाइयों के मकानात दिखाकर कहा कि ये सिखों के वक्त के बने हुए हैं, मुझे उम्मीद नहीं कि आपके वक्त में मेरे बेटे इनकी मरम्मत भी कर सके। यानी इतने भी पैसे नहीं सी है कि उन्होंने मकाना की मरम्मत भी हो सकती। यही मतलब निकलता है ना, अदरवाइज तो नहीं गल मरम्मत वाली गल कर सकते। नहीं खामखा झूठ बोलने की की तुक है, क्योंकि हुण ते तुहाडे सारा कुछ डॉक्यूमेंटेशन तुहाडे मौजूद है, तुसीं देख सकते हो, चेक कर सकते हो। मतलब लोगों को किहनूं बेवकूफ बना रहे हैं? ये तो कह के है कि बहुत बड़े जागीरदार सन मिर्जा साहब। हाँ, खुरम नसीर नहीं ये चंदा खोर ने सारे।
ਕੋਈ ਜਗੀਰ ਜਗੂਰ ਕਰਨੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਝੂਠ ਇੱਕ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਰਾਤੀ ਉਹਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਰੇ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਮਰ ਉੱਥੇ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੋ ਦਾਲ ਦਲੀਆ। कौन कहता मोहम्मद अहमद? ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਖੁਰਮ ਨਸੀਰ ਰਾਣਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅਮਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਮੂਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋ ਕਰਨਾ ਸੋ ਦਾਲ ਦਲੀਆ ਦੇਣਾ ਉਸ ਜਵਾਬ। ਯਾਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲਤ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅਹਿਮਦ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਲਤ ਲਿਆ ਹੈ, ਹਵਾਲਾ ਗਲਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਸ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਗਲਾਵਾਂ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਗੱਲ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਨਾਮ ਦਿਆਂਗਾ। ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਖਾਮ ਖਾ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਨਾਮ ਦੇ। ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਇਨਾਮ ਤੇ ਇਹੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ 100 ਜੁੱਤੇ ਮਾਰ ਤੇ ਉਹਦੀ वीडियो बना। उसने इसी तरह वीडियो एक पहले भी बनाई थी ना आमिर भाई आपके ऊपर। कौन सी वाली? ये कि आपने क्या बोला था, बड़ा याद है, मार्च 4 तारीख की कोई वीडियो थी, कह रहा था कि आपने किसको सिराज मुनीर कहा था? हाँ वो तो डॉक्टर याहिया ने मेरे चवल मारी थी ना। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी ना वो वाली, या नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। तो वो कोई पता नहीं, ये ज़ैतून FM पे उस जमाने में जी कोई इसने काट के फारूक साहब ने मुझे सेंड किया, तो मैंने ऐसे ही डॉक्टर याहिया को सेंड कर दिया। तो डॉक्टर याहिया मुझे जवाब दे रहा है, चौहान साहब सुने हो? अच्छा, अल्लाह के फजलो करम से सिराज मुनीर हम हैं। जमात अहमदिया वाले सिराज मुनीर हैं, अल्लाह के फजलो करम से हम हैं सिराज मुनीर। मैं तो अल्लाह ना तो अस्सलाम वालेकुम। नहीं, उसने ये इल्जाम लगाया था कि आपने अपने आप को सिराज मुनीर बोला। भाई मैं कभी बोल ही नहीं सकता, अल्लाह माफ करे। वो तो उसको पीछे लगे थे ना हम के तुम लेकर आओ, रिकॉर्डिंग लेकर आओ। वो कहता है उसने निकलवाने की कोशिश की थी, मार्च 4 तारीख की कोई रिकॉर्डिंग थी, वो उस वक्त का गया हुआ ये वीडियो लाने के लिए ना, हवाला लाने के लिए, आपकी रिकॉर्डिंग लाने के लिए। मैंने तो सिर्फ कुरान करीम की आयत पढ़ी थी और बात असल में ये हो रही थी ज़ैतून FM पे कि देखो मैंने वो शेर पढ़ा था डॉक्टर राहत इंदौरी का कि ये जो मिर्जाई है ना, इनके बारे में किसी शायर ने कहा है, अंदर का जहर चुन लिया सब धुल के आगे, कितने शरीफ लोग थे सब खुल के आगे, सूरज से जंग जीतने निकले थे बेवकूफ, सारे सिपाही मोम के थे घुल के आगे। फिर मैंने ये आयत पढ़ी थी कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी को सिराज मुनीर कहा। ये सिराज मुनीर से जंग, सूरज चमकता हुआ सूरज, सिराज मुनीर का मानिए चमकता हुआ सूरज। तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी को ये कहा है, वदायन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। तो मैं अपने आप को क्यों कहूंगा सिराज मुनीर? दिमाग खराब है मेरा? तो मैंने तो वो आयत पढ़ी थी, तो वो फरूक भाई ने मुझे कहीं काट कर भेज दी, मैंने डॉक्टर याहिया को फॉरवर्ड कर दी। तो ये कहता है अल्लाह के फजल से सिराज मुनीर हमें, तो मैं क्या तेरे मर जान जमन के नाम वाले मुद्दा। अच्छा अमर भाई, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਾਤੀ ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਚਿੜ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਉਹ ਕੀਤੀ ਨਾ ਹੁਰਮ ਰਾਣਾ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਨਾ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਅਮਦਾ ਮਾਰੀਆ ਕਿੱਤਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੋਹਫੇ ਆਏ ਸਨ, ਨਬੀ ਕੇ ਸੱਲਮ ਨੇ ਮੁਮਾਸਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਫੜ ਲਿਓ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਚੀਕ ਚਾੜਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਚੱਕਾਂ ਝੋਟ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਮਾਸਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰਲੀ ਛੱਡੀ ਇਹਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਜੀਭ ਦੇ ਛੜੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ 1122 ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਚੱਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਵਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਗੰਦਲਾਂ ਦਾ ਸਾਗ ਖੋ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਖੈਰ ਜੇ ਨਾ शेर आ गया याद आमिर भाई कल ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਲਕ ਆਪਣਾ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਤਾ, ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਉੱਤੇ ਆ। चलो दोबारा चुक लो। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ। ते ज़िया भाई मौजूद ने? ਸੁੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਖੁਰਮ ਦਾ ਤੇ ਨਜ਼ੀਰ ਬਲਾਲ ਦਾ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਗੱਟ ਹੋਇਆ ਆਖੋ ਨੇ ਉੱਤੇ ਬਰਾੜ ਦੇ ਚੜਨ ਕਿਹਦਾ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਖੁਰਮ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਨਜ਼ੀਰ ਬਲਾਲ ਦਾ ਗੱਟ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਨਾ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਕਾਲ ਭਾਈ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਫਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਰੀਖ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਜਿਲਦ 10 ਸਫਾ 48 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਦਰ ਅੰਜਮਨ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਸਤੰਬਰ 1947, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ने लिखा है कि इस इजलास में हजूर ने मरकज पाकिस्तान की स्कीम भी पेश फरमाई और करार पाया कि इस ज़मन में अहमदी जमातें 5 लाख रुपया फराम करें। यानी मरकज वास्ते चंदा जड़ा है वो अहमदी जमाता ने इकट्ठा करना सी। नया मरकज कहाँ कायम किया जाए ये सवाल भी देर गौर आया। हजूर की तजवीज़ थी कि इसके लिए जिला शेखोपुरा में कोई मुनासिब जगह इंतखाब की जाए। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਨਾ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦਾ ਆਡਿਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਚੰਦੇ ਦਾ, ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਡਿਟ ਰੱਖਿਆ, ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਨਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਹਦੇ ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਚੰਦੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਖਮੀਨਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹ 5 ਮਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਡਿਵਾਈਡ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਇਖਤਿਆਰ ਸੀ, ਅਦਾਲਤ ਕਹਿੰਦੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਕਸ ਠੁਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਰਲਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਯਾਰ, ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮਦੇ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਟੋਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਪੜਤ ਕੋ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਆਮਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਆਮਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਆਮਦੇ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁੰਮੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਪੈਸੇ ਖਾਣ ਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਆਡਿਟ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਨਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੀਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਾਅਤ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਿਆਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਾਮੂਰ ਮਨੱਲਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਬੱਤਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਡਿਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਫਰਕ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਮਾਮੂਰ ਮਨੱਲਾ ਸੀ। ਮਾਮੂਰ ਮਨੱਲਾ ਦੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮੂਰ ਮਨੱਲਾ ਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਦਾਵਾ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਖਾਤਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਾਤੀ ਅਗਰਾਜ਼ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਖਾਤਰ ਕਰ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਮਸ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਨਾਲ ਫੈਮਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਯਤੀਮਾਂ ਨੂੰ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਉਹ ਤੇ ਬੈਤੁਲ ਮਾਲ ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜ਼ਕਾਤ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਬੈਤੁਲ ਮਾਲ ਚ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਦੌਰ ਚ ਕੋਈ ਬੈਤੁਲ ਮਾਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਨਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਚ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਿਆ ਨਾ ਬੈਤੁਲ ਮਾਲ। ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਚ ਸਿਰਫ 5ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸਫਾਈ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਨਫਾਸਤ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਦੀਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਹਾਦ ਵਿੱਚ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ 5ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਨਸਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸਵਾਬਦੀਦ ਤੇ ਸੀ ਉਹ, ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹਨ ਖਰਚ ਕਰਨ। ਨਹੀਂ, ਉਹ 5ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਇਹ 5ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਤੋਂ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਖੁਦ ਵੀ ਬੇਵਾਂ ਦਾ, ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਫਾਲਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਈਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਉਸੇ ਪੈਸੇ ਚੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਤੇ ਹੈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ 5ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੈਰਿਟੀ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ 5ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਨਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਕਫਾਲਤ ਨਬੀ ਪਾਕ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਣਾ। ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ, ਫੜਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ 10,000 ਹੈ, 3,000 ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਸਾਲ ਆਇਆ, 5200 ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 5 ਮੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਤਫਸੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਮੋਟਾ ਆਡਿਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ 5200 ਰੁਪਇਆ ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ 5 ਮੱਦਾਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਲਾਇਆ, 5000 ਲੱਗ ਗਿਆ, 200 ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਤ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਲੈਰਿਟੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ